Welcome to Tax Concept Analysis channel. Today I will discuss with you one scheme which was introduced in budget, Vivad Se Vishwas scheme. Many of taxpayers have confusion regarding what to be included in this scheme and what are to be excluded from the scheme. So, uh, in this video, I will discuss with you some of the frequently asked questions and their answers. Let's start. पहला जो क्वेश्चन है, विच अपील्स आर कवर अंडर विवाद से विश्वास। इस स्कीम के अंदर कौन सी अपील आएगी, ये कंफ्यूजन था। तो उसमें वो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है कि इस स्कीम के अंदर स्पेसिफिक ये ही अपील आएगी। देखते हैं। अपील बिफोर कमिश्नर अपील, ओके। अपील बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, appeal before High Court or Supreme Court. Then right petition pending before High Court or Supreme Court. Special leave petition pending before Supreme Court as on 31st day of January 2020. Cases where order has been passed but the time limit for filing appeal under Income Tax Act against the order has not expired as on specified date are also covered. इसमें क्या कहा है? ऑर्डर पास हो चुका है बट अपील फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है ऑन स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट कब है? 31 जनवरी 2020। तो ऐसे केसेस भी स्कीम में होंगे। देन केसेस वेयर ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाय असेसी अगेंस्ट ड्राफ्ट ऑर्डर आर पेंडिंग विद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। क्या कहा है? केसेस वेयर ऑब्जेक्शन फिल्ड बाय द असेसी अगेंस्ट ड्राफ्ट ऑर्डर आर पेंडिंग विद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। और जो ड्राफ्ट ऑर्डर था उसके सामने ऑब्जेक्शन फाइल किया है और वो पेंडिंग विद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। और वेयर डीआरपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल हैज गिवन द डायरेक्शन, डीआरपी ने डायरेक्शन दे दिया बट असेसिंग ऑफिसर हैज नॉट पास द फाइनल ऑर्डर ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है। और केसेस में रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 ऑफ द एक्ट इज पेंडिंग बिफोर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। कौन से रिवीजन एप्लीकेशन जो पेंडिंग हो? कमिश्नर अपील, अरे सॉरी, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। और लास्टली वेयर अ डिक्लेरेंट हैज इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग और गिवन एनी नोटिस फॉर arbitration, conciliation, mediation as referred to in section 4 of the bill. If there is no appeal pending but the case is pending in arbitration, appeal pending nahi hai, case is pending hai, will the taxpayer be eligible to apply under Vivad Se Vishwas? If yes, what will be the disputed tax? देखते हैं। An assessee whose case is pending in arbitration is eligible to apply for settlement under Vivad Se Vishwas even if no appeal is pending. Case is pending, appeal is not pending. Yes. In such case, assessor should file the relevant detail applicable in his case in the declaration form. The disputed tax in this case would be the tax including surcharge and cess on the disputed income with reference to which arbitration has been filed. Question क्या है? अपील पेंडिंग नहीं है लेकिन केस पेंडिंग है। कहाँ पे? इन आर्बिट्रेशन। तो एलिजिबल है वो एसएससी? हाँ, एसएससी उस केस इज पेंडिंग इन आर्बिट्रेशन, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेटलमेंट अंडर विवाद से विश्वास इवन इफ नो अपील इज पेंडिंग। अपील पेंडिंग ना हो फिर भी। और ऐसे केस में क्या करना होगा? रिलेवेंट डिटेल, इनके केस का जो डिटेल्स है वो डिक्लेरेशन फॉर्म्स के अंदर भरना होगा। एंड डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होगा? जो इनकम है डिस्प्यूटेड इनकम, उसका इसके ऊपर जो टैक्स आता है इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस with reference to which the arbitration has been filed. Next question. Whether Vivad Se Vishwas can be availed for proceeding pending before authority of advance ruling.
प्रोसीडिंग पेंडिंग कहाँ पे है? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. If a right is pending against order passed by authority of advance ruling in a high court, will that case be covered and how disputed tax to be calculated? Whether the विवाद से विश्वास can be availed for proceeding before authority of advance ruling. देखते हैं. No, not available. This scheme will not be available for dispute pending before authority of advance ruling. मतलब जो केस है वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में पेंडिंग है. डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग बिफोर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अगर पेंडिंग है एएआर पे, एएआर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग पे पेंडिंग है, तो स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड ऑर्डर पास बाय असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है और असेसिंग ऑफिसर ने इनकम को डिटरमाइन किया है. असेसमेंट ईयर की टोटल इनकम को डिटरमाइन किया है. हाँ किया है. एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम. मतलब ऑर्डर पास किसने किया है? असेसिंग ऑफिसर. उस ऑर्डर में इनकम को डिटरमाइन किया है. हाँ, अगर इनकम को डिटरमाइन किया है तो विवाद से विश्वास स्कीम एलिजिबल है. अगर और डिस्प्यूटेड टैक्स शैल बी कैलकुलेट एज पर द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर जो आया है उस ऑर्डर के हिसाब से डिस्प्यूटेड टैक्स कैलकुलेट करना होगा. जो फर्स्ट टैब है यहाँ पे कि नॉट अवेलेबल फॉर डिस्प्यूट पेंडिंग विथ एएआर. अभी एएआर में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है उस पे केस पेंडिंग है तो ये स्कीम नहीं मिलेगा. लेकिन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर दिया है और असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है. उस ऑर्डर में असेसिंग ऑफिसर ने टोटल इनकम जो है असेसमेंट ईयर का कैलकुलेट किया है, डिटरमाइन किया है, तो विवाद से विश्वास स्कीम में बेनिफिट मिलेगा. और जो टैक्स हमको डिस्प्यूटेड टैक्स गिनना है वो AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर दिया उस हिसाब से गिनना है. अगर डिटरमाइन नहीं किया है, सेकंड केस ऑर्डर पास तो कर दिया लेकिन इनकम डिटरमाइन नहीं किया है, तो इनकम ही डिटरमाइन नहीं किया है तो डिस्प्यूटेड टैक्स कैसे गिनेंगे? इसीलिए ये स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा. सिंपल है. क्वेश्चन क्या है? वेदर द विवाद से विश्वास कैन बी अवेल फॉर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. नहीं होगा क्योंकि पेंडिंग है. इफ राइट इज पेंडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय AAR इन अ हाई कोर्ट, विल दैट केस बी कवर्ड? सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ राइट इज पेंडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय AAR, ऑर्डर तो पास कर दिया है तो उसके अंदर ऑर्डर पास बाय असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेंगे और उसमें इनकम को कैलकुलेट करेंगे. अगर डिटरमाइन किया इनकम असेसिंग ऑफिसर ने तो उस इनकम के ऊपर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम. और डिस्प्यूटेड टैक्स कैलकुलेट करेंगे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर है उस हिसाब से. अगर डिटरमाइन ही नहीं किया असेसिंग ऑफिसर ने इनकम तो not eligible to calculate disputed tax and not eligible to apply for this scheme. Okay, question. All appeal has been filed against the interest levied on assessed tax. असेस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लेवी किया हुआ है इसलिए अपील फाइल किया है. देयर इज नो डिस्प्यूट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ असेस टैक्स. कैन द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी अवेलेबल? देखते हैं. डिस्प्यूट ऑन टैक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू सच इंटरेस्ट. मतलब मेन क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट जो लेवी किया है उसका डिस्प्यूट है. तो यहाँ पे क्या है? डिस्प्यूट ऑन टैक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू सच इंटरेस्ट. ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट किस पे लगता है? जो टैक्स अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट के लिए भी डिस्प्यूट है और डिक्लेरेशन कवरिंग डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट. जो क्वेश्चन क्या है? ऑल अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट लेविड ऑन असेस टैक्स. तो वो टैक्स अमाउंट भी डिस्प्यूटेड है? अगर यस हाँ है तो
full amount of interest levied or leviable related to the disputed tax shall be waived. मतलब टैक्स भी डिस्प्यूटेड है, तो उसके तो जो इंटरेस्ट लगने वाला था, इंटरेस्ट लेविड और लेविएबल रिलेटेड टू डिस्प्यूटेड टैक्स शैल बी वेव होगा. अगर डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है देन एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. सिंपल. क्वेश्चन क्या है कि ऑल द अपील हैज बीन फाइल अगेंस्ट द इंटरेस्ट लेविड ऑन असेस टैक्स. टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है, उसके लिए अपील फाइल किया है. However, there is no dispute against the amount of assessed tax. क्वेश्चन में कहा है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, असेस जो टैक्स है उस रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है. अगर टैक्स के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है तो एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. अगर टैक्स भी डिस्प्यूटेड है तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेव होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What if the disputed amount including interest has been paid by the appellant while being in appeal? Disputed amount यानी टैक्स अमाउंट प्लस डिस्प्यूटेड अमाउंट और इंटरेस्ट वो पे कर दिया अपीलेंट अपील के दौरान. डिस्प्यूटेड डिमांड. क्वेश्चन में क्या है कि डिस्प्यूटेड डिमांड और इंटरेस्ट दोनों पे कर दिया है तो भी हमको ये स्कीम मिलेगा. तो क्वेश्चन में है कि डिस्प्यूटेड डिमांड अगर पार्टली पे किया है या फुल्ली पे किया है तो कवर अंडर दिस स्कीम. आपने डिस्प्यूटेड डिमांड या तो पार्टली पे किया है या फुल्ली पे किया है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा स्कीम का. और जो टैक्स पे किया है वो अगर ये विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जो अमाउंट कैलकुलेट होता है अमाउंट पेबल उससे ज़्यादा है, अगर टैक्स पे किया है तो रिफंड मिलेगा. एलिजिबल टू रिफंड विदाउट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A. सिंपल है. What if the disputed amount including interest has been paid by the appellant while being in appeal? अपील के दौरान disputed demand including interest पे कर दिया है. अगर disputed demand पार्टली पे किया हो या फुल्ली पे किया हो, दोनों ये स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा. और जो अमाउंट पे किया अगर वो विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर जो अमाउंट पेबल आता है उससे ज्यादा है तो बाकी का अमाउंट एंटाइटल्ड टू रिफंड विदाउट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A. Next question. Can the benefit of the Vivad se Vishwas be availed if a search and seizure action by income tax department has been initiated against a taxpayer? Answer है where tax area related to an assessment under section 143(3) or section 144 और सेक्शन 153A और सेक्शन 153C. अगर टैक्स एरिया रिलेटेड टू असेसमेंट, असेसमेंट कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 143(3), 144, 153A एंड 153C, इस सेक्शन के अंदर असेसमेंट हो और उस रिलेटेड कोई टैक्स एरिया है और अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल. अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स 5 करोड़ से कम है तो बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज अवेलेबल. सिंपल. क्वेश्चन है कि कैन द बेनिफिट ऑफ द विवाद से विश्वास बी अवेल इफ सर्च एंड सीजर एक्शन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च एंड सीजर एक्शन लिया है एसएससी के सामने, तो वो इस स्कीम के अंदर अवेलेबल है. तो इस स्कीम के अंदर कौन से सर्च एंड सीजर के केसेस only related to the tax area जो assessment under section 143(3), section 144, section 153A और section 153C, इस assessment, इस section के अंदर assessment हो रहे हैं और amount of disputed tax जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है अगर, तो स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा और 5 करोड़ से अगर कम है तो बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज अवेलेबल.
Is there any necessity that to qualify under the Vivad se Vishwas, the appellant should have tax demand in arrear as on the date of filing declaration? अगर इस स्कीम के अंदर फॉल होना है तो टैक्स डिमांड एरियर होना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसिटी है? तो आंसर है वेयर टैक्स एरियर अगर फुल्ली पेड किया है या फिर पार्टली पेड किया है या फिर पूरा आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन में क्या है कि टैक्स डिमांड एरियर में होना चाहिए। क्या है, टैक्स डिमांड एरियर में होगा तभी हमको विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर है कि अगर हमने टैक्स फुल्ली पे किया है या फिर पार्टली पेड किया है या पूरा आउटस्टैंडिंग है, तीनों केस में ये स्कीम अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether section 234E and 234F appeal are covered under this scheme। अब सबसे पहले सेक्शन 234E क्या है, तो नीचे देखिए सेक्शन 234E फी फॉर फर्निशिंग टीडीएस स्टेटमेंट। फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस स्टेटमेंट एंड सेक्शन 234F है फी फॉर डिफॉल्टिंग फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। उस रिलेटेड अगर अपील है 234E में डिफॉल्ट किया है टीडीएस स्टेटमेंट के लिए और 234F में फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, वेयर अपील हैज बीन फाइल अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फीस अंडर दिस स्कीम। ये दिस सेक्शन मतलब ये सेक्शन के अंदर फीस जो लगती है उस रिलेटेड अपील किया है। अपीलेंट वुड बी एलिजिबल टू फाइल डिक्लेरेशन फॉर डिस्प्यूटेड फी। यस, डिस्प्यूटेड जो फीस है उस रिलेटेड अपीलेंट एलिजिबल है। अमाउंट पेबल अंडर दिस स्कीम शैल बी 25% और 30% ऑफ डिस्प्यूटेड फी। जो भी डिस्प्यूटेड फी है उसका 25% और 30% अमाउंट पेबल होगा ये विवाद से विश्वास स्कीम में। और इफ फी पर्टेन टू ईयर इन विच देयर इज अ डिस्प्यूटेड टैक्स, फी कौन से साल की है, फी उस साल की है जिसका टैक्स भी डिस्प्यूटेड हो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स विल नॉट सेटल द डिस्प्यूटेड फीस। अगर जिस साल में डिस्प्यूटेड टैक्स है उसी साल में का डिस्प्यूटेड फीस भी है तो जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स विल नॉट सेटल द डिस्प्यूटेड फीस। अगर हम डिस्प्यूटेड फीस को सेटल करना चाहते हैं तो देन appellant need to pay separately by paying 25% or 30% of the disputed fee। टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट तो है ही, अगर हम टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्यूटेड फी भी सेटल हो जाएगी। अगर डिस्प्यूटेड फीस को सेटल करना है देन अपीलेंट को क्या करना होगा, अपीलेंट को सेपरेटली 25% और 30% ऑफ द डिस्प्यूटेड फी पे करना होगा। With respect to interest under section 234A, 234B or 234C, there is no appeal, but the SSC has filed waiver application before the competent authority, which is pending as on 31st January 2020. Will such cases be covered under this scheme? Interest अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C उस रिलेटेड अपील नहीं है, लेकिन असेसी ने वेवर एप्लीकेशन फाइल किया है। अपील नहीं है, वेवर एप्लीकेशन फाइल किया है और वो पेंडिंग है 31 जनवरी 2020 के दिन। तो क्या अवेलेबल होगा, ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वेवर एप्लीकेशन आर नॉट अपील विद इन द मीनिंग ऑफ विवाद से विश्वास। यहाँ पे अपील कोई पेंडिंग नहीं है, अपील कोई फाइल ही नहीं किया, ओनली वेवर एप्लीकेशन है। और वेवर एप्लीकेशन क्या बोला, वेवर एप्लीकेशन आर नॉट अपील विद इन द मीनिंग ऑफ विवाद से विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस और टीसीएस बी ऑल्सो कवर अंडर विवाद से विश्वास? टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट करने में डिले किया है तो क्या वो इस स्कीम के अंदर फॉल होगा? आंसर है
सबसे पहले डिस्प्यूटेड टैक्स का मतलब क्या है स्कीम के अंदर, उसका डेफिनेशन क्या है। तो टैक्स रिलेटेड टू टीडीएस एंड टीसीएस विच आर डिस्प्यूटेड एंड पेंडिंग इन अपील, वही डिस्प्यूटेड टैक्स की डेफिनेशन में आएगा। मतलब टैक्स रिलेटेड टू टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स रिलेटेड टू टीडीएस टीसीएस भी आएगा, लेकिन वो डिस्प्यूटेड हो एंड अपील के अंदर पेंडिंग है तो वो डिस्प्यूटेड टैक्स के अंदर फॉल होगा। इफ देर इज नो डिस्प्यूट रिलेटेड टू टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस टीसीएस रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है एंड देर इज डिले इन डिपॉजिटिंग सच टीडीएस टीसीएस, डिस्प्यूट कुछ नहीं है टीडीएस टीडीएस टैक्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन टीडीएस टीसीएस को डिले किया है डिपॉजिट करने में, तो डिले करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या बोला है, देन डिस्प्यूट पेंडिंग इन अपील रिलेटेड टू इंटरेस्ट लेवी ड्यू टू सच डिले विल बी कवर, मतलब टैक्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है लेकिन उस टैक्स को डिले किया डिपॉजिट करने में, अगर डिले करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा, और वो जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं उस रिलेटेड हमने अपील फाइल किया है कि जो इंटरेस्ट लगाया हुआ है, और वो इंटरेस्ट रिलेटेड हमने अपील फाइल किया और वो अपील पेंडिंग है, तो क्या वो अपील फॉल होगी इस स्कीम के अंदर। यस, benefit of this scheme will be available to interest cases on also, means TDS and TCS related tax related no dispute, only dispute related to interest on such delay payment and appeal is filed for that interest, then this benefit of scheme will be available. Yes, it will be available. Next, are dispute related to wealth tax, security transaction tax, commodity transaction tax and equalization levy covered। कौन सा डिस्प्यूट किसके रिलेटेड, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सीटीटी एंड इक्वलाइजेशन लेवी, ये भी विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर कवर होंगे। तो आंसर क्या है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि ओनली डिस्प्यूट रिलेटेड टू इनकम टैक्स आर कवर। अगर डिस्प्यूट रिलेटेड टू वेल्थ टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है एंड इक्वलाइजेशन लेवी है, तो ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assessment, the assessment order under section 143(3) of the act was passed in the case of an assessee for the assessment year 2015-16. The said assessment order is pending with ITAT, Income Tax Appellate Tribunal. Subsequently, another order under section 147 or 143(3) was passed for the same assessment year, and that is pending with CIT appeal. Could both or one of the order be settled under this scheme? पहले क्या बोला, असेसमेंट है 15-16 का केस है, वो असेसमेंट ऑर्डर पास किया करा है 143(3), और ये ऑर्डर पेंडिंग कहाँ पे है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और दूसरा ही ऑर्डर पास किया है यही असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर 15-16 का, और अंडर सेक्शन 147 और 143(3), और वो पेंडिंग है सीआईटी अपील। कुड बोथ और वन ऑफ द ऑर्डर बी सेटल, क्या दो या एक ऑर्डर सेटल होगा अंडर ये स्कीम के अंदर। अपीलेंट इन दिस केस हैज एन ऑप्शन टू सेटल आइदर ऑफ द टू अपील और बोथ अपील फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। ऑप्शन है असेसी को आइदर ऑफ द टू, दोनों में से एक और दोनों, फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। इफ ही डिसाइड टू सेटल बोथ अपील, then he has to file only one declaration in form number 1. If we decide to settle both appeal, तो उनको एक डिक्लेरेशन, दोनों अपील को सेटल करना चाहता है एसएससी, तो एक ही फॉर्म भरना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा उस फॉर्म में। disputed tax in this case would be the aggregate amount of disputed tax in both the appeal, दोनों अपील के अंदर जो भी disputed tax है दोनों का aggregate amount disputed tax गिना जाएगा। If the due date of filing appeal is after 31st January 2020, the appeal has not been filed,
will such case be eligible for this scheme? अपील की ड्यू डेट 31 जनवरी 2020 के बाद में। तो and the appeal has not been filed, will this case be eligible? यस, ये केस भी आएगा। क्या बोला? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द अपील इज आफ्टर 31 जनवरी 2020